اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الفصل الثانی عشر من المرحلة الاولى فی امتناع اعادة المعدوم بعینہ 12ویں فصل اس مرحلہ اولا کی اور آخری فصل ہے. ہمارا پہلا مرحلہ ختم ہو جائے گا. وہ اس میں ہے کہ معدوم کا اعادہ بعینہ ہی ممتنع ہے. کل اس مطلب کی تھوڑی وضاحت کر دی تھی. عبارت کو تطبیق کرتے ہیں. برہان پہ جب پہنچیں گے تو برہان کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض ہو جائے گی. قالت الحکماء ان اعادۃ المعدوم بعینہ ممتنعۃ. حکماء قائل ہیں کہ معدوم کا بعینہ اعادہ ممتنع ہے. وتبعهم فیہ بعض المتکلمین. بعض متکلمین بھی حکماء کے تابع ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى الْجَوَازِ. لیکن اکثر متکلمین قائل ہیں کہ اعادہ معدوم جائز ہے. وَقَدْ عَدَّ الشَّيْخ امتناع اعادۃ المعدوم ضروریہ. شیخ الرئیس ابن سینا اس نے کیا کہا ہے کہ اعادہ معدوم کا ممتنع ہونا ضروری و بدیہی ہے. اصلا استدلال کی ضرورت نہیں ہے اس کی. وَهُوَ مِنَ الْفِطْرِيَّاتِ. فطریات میں سے ہے. کیوں؟ لقضاء الفطرۃ ببطلان الشیعیۃ المعدوم. کیونکہ فطرت فیصلہ کرتی ہے، حکم کرتی ہے کہ معدوم چونکہ شیء نہیں ہے، بطلان محض ہو جاتا ہے، پس اس کے اعادے کا بھی کوئی معنی نہیں بنتا. فلا یتصف بالاعادہ. چونکہ وہ شیء نہیں ہے، بطلان محض ہے، پس اعادہ کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا. والقائلون بنظریۃ المسألۃ. اب کہتے ہیں کہ جو فلاسفہ قائل ہے کہ اعادہ معدوم ممتنع ہے، احتجوا علیہ بوجوہ. انہوں نے مختلف استدلال کیے ہیں، مختلف دلیلیں لے کر آئے ہیں. منہا، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے. فرماتے ہیں دیکھیں، بعینہ، اس کو آپ نے ہمیشہ اس فصل کے ختم ہونے تک ذہن میں رکھنا ہے. کیونکہ اگر یہ بعینہ والا نقطہ اگر آپ کے ذہن سے غافل ہو گیا تو مطلب جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا اور سوالات ذہن میں اٹھیں گے. بعینہ سے کیا مراد ہے؟ مثلا کسی قسم کی خصوصیت دوسرے وجود کے اندر مفقود نہ ہو. مثال لے لیتے ہیں. مثلا آپ کا وجود ہے، بے عنوان زید ہم لیتے ہیں وجود، اس کی تمام خصوصیات اور کسی قسم کا اختلاف موجود نہ ہو، اس کو مد نظر رکھیں. ہفتے کو یہ موجود تھا زید اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ. اتوار کو یہ معدوم ہو گیا. سوموار کو اس نے اب اعادہ کرنا ہے. اور اعادہ کے اندر کیا ہے؟ بعینہ کی شرط ہے. یعنی سوموار کو جس زید نے اعادہ کرنا ہے، پلٹ کر آنا ہے، وہ بعینہ کون سا ہونا چاہیے؟ ہفتے والا ہونا چاہیے. تمام خصوصیات، اس کا وجود، اس کی خصوصیات، اس کا زمان، جو کچھ بھی ہے سب کا سب جو ہے وہ سوموار والے دن ہونا چاہیے. گویا کہ یوں کہہ لیں کہ جو وجود جو ہے ہفتے والے دن موجود ہے، وہی وجود کیا ہونا چاہیے؟ سوموار والے دن ہونا چاہیے اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ. تو اب اعادہ اگر کرنا ہے تو کیا لازم آئے گا؟ لازم یہ آئے گا کہ تقدم الشیء علی نفسہ ہے. کیوں؟ کیونکہ بعینہ کی قید ہے کہ بعینہ ہفتے والا زید سوموار والے دن آئے تو بعینہ اگر سوموار والے زید نے آنا ہے، زید نے سوموار والے دن آنا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ زید نے آنا تھا سوموار والے دن، آیا کب ہے؟ اتوار والے دن، ہفتے والے دن. تو اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ تقدم الشیء علی نفسہ ہے، کیونکہ بعینہ کی قید ہے. بعینہ اتمن ہو کہ کسی بھی قسم کی کوئی خصوصیت جو ہے وہ خارج نہ ہو، تو یہ تقدم الشیء علی نفسہ لازم آئے گا. تو تقدم الشیء علی نفسہ محال ہے، نہیں ہو سکتا. علامہ نے یہاں کیا عبارت استعمال کیا؟ علامہ کہتے ہیں کہ اگر اعادہ معدوم بعینہ جائز ہو تو تخلل عدم لازم آئے گا. یعنی دو وجود جس کو آپ ایک دوسرے کا عین مانتے ہیں،
उनके दरमियान अदम आ जाएगा। ऐन का माना है कि किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है, दुरुस्त है। लेकिन अगर मादूम हो के वो दोबारा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हतमन को फर्क है, तखल्लुल अदम लाजिम आएगा और ऐनियत के दरमियान तखल्लुल नहीं होता। अगर अदम दरमियान में आता है तो इसका मतलब यह है कि ये दो वजूद फर्क रखते हैं, कम से कम छोटी सी कोई ना कोई ऐसी खुसूसियत होगी जिसमें ये फर्क रखेंगे ताकि इनके दरमियान अदम आ जाए। लेकिन आप कहते हैं है कि बेऐन ही, एक ही है सब कुछ, हर चीज में एक है, बेऐन ही है, तो वहां पे अदम कैसे फिर आया? अदम तो आना ही नहीं चाहिए असलन, क्योंकि ये एक ही वजूद है और एक वजूद के दरमियान अदम नहीं आ सकता। और बेऐन ही का तसव्वुर बाज़ औक़ात हम मिसल के जरिए करते हैं। मतलब अक्सर जब ये मताले बयान किए जाते हैं तो सवाल करते हैं, हो सकता है मसलन मैं मादूम हो जाऊं, तमाम खसूसियात के साथ मुझे दोबारा पलटा दिया जाए, जो कुछ मैं खसूसियात रखता हूं है या नहीं है। उसका जवाब क्या? जवाब यह है कि आप दुरुस्त है तमाम खसूसियात के दोबारा पलट के आएंगे, लेकिन आप जब दोबारा आएंगे तो हतमन जो है आपका तकरार हुआ है, आपका वो मिसल होगा, क्योंकि अगर मिसल ना हुआ ऐन हुआ तो फिर मादूम नहीं होना चाहिए था आपको। ऐनियत यानी एक चीज, जैसे कि अभी सिफात ज़ात के अंदर आपको बयान किया था, ऐनियत यानी एक चीज, तमायुज नहीं होना चाहिए उसके अंदर किसी भी किस्म का। और जब तमायुज नहीं है इसका मतलब एक ही चीज है, हफ्ते वाला जैद और सोमवार वाला जैद एक ही चीज है। जब एक ही चीज है तो इतवार का उसके दरमियान फासला क्यों आ रहा है? फासला तो तब आता है जब दो चीजें हों, तो आप दो के कायल ही नहीं है। आप कहते हैं जो सोमवार वाला है वो बेऐन ही हफ्ते वाला है, तो फिर अदम बीच में क्यों आया है? और एक चीज के अंदर अदम मुतखल्लिल नहीं हो सकता, यह बदही चीज है। यह एक पहला बुरहान है। मिनहा अन्नहु लौ जाज़ लिल मादूम फी ज़मानिन अन युआद फी ज़मानिन आखर बेऐनिही, अगर मादूम जायज हो एक जमान में कि इसको दूसरे जमाने में बेऐन ही पलटा दिया जाए, लाजिमा तखल्लुल अदम बैन शै व नफ्से, तो लाजिम आएगा कि एक चीज उसकी जात के दरमियान तखल्लुल अदम आ गया है, जैद का जैद के दरमियान तखल्लुल अदम हो गया है, यानी जैद और जैद के दरमियान अदम आ गया है, और यह मुहाल है, नहीं हो सकता असलन। वह मुहाल क्यों? लिअन्नहु हीना इज़िन यकूनु मौजूदन बेऐनिही फी ज़मानैन, इसका मतलब ये, इसका लाजिमा यह आएगा कि जैद जो है वो बेऐन ही दो जमानों में मौजूद है, लेकिन बैनहुमा अदमुन मुतखल्लिल, लेकिन उनके दरमियान अदम मौजूद है। नहीं हो सकता, एक वजूद हो और उनके दरमियान अदम आ जाए, नहीं हो सकता। ये क्यों मुहाल है? इसकी वजह तक़द्दुम शअला नफ्स है, वो जो पहले आपके अर्ज किया था कि हफ्ते वाला जैद अगर सोमवार वाला जैद अगर हफ्ते वाला जैद है और इसने सोमवार को आना है तय ये पाया है, तो इसका मतलब क्या है कि सोमवार वाले अगर जैद को देखें तो ये जैद जो सोमवार को आना, ये तो हफ्ते को मौजूद है, तो इसने जब यहां पर आना था तो हफ्ते को फिर क्यों आया है? बस ये तक़द्दुम शअला नफ्स है, एक चीज का अपने ऊपर मुकद्दम होना है, और ये मुहाल है, ये नहीं हो सकता। ये एक बुरहान। दूसरा बुरहान देखें, फरमाते हैं कि दिक्कत करें यहां पर, फरमाते हैं देखें आप कह रहे हैं कि ये जैद जो है अगर मादूम हो जाए तो इसको बेऐन ही पलटा सकते हैं, इसका इआदा हो सकता है, इआदा मादूम मुमकिन है। हम कहते हैं चले मान लेते हैं, लेकिन यह चीज ज़हन के अंदर रखें कि जो मुआद है जिसको पलटाया जा रहा है, यह ताबीर से इस्तेमाल कर चुके, इबारत में यह लफ्ज मौजूद है, इबारत वाज़ हो जाए। जो मुआद है वो ऐने मबदा है, ठीक है, यानी जो जैद है और मादूम हुआ है ये मबदा है, और जो पलट कर आएगा वो क्या है? मुआद है, यानी जिसको पलटाया जाएगा। तो अब चूंकि फर्ज ये है कि मुआद ऐने मबदा है या ऐने मुब्तदा है, मुब्तदा की ताबीर दुरुस्त है, मुब्तदा है, तो अगर मुआद जायज है तो फिर इसी
मुब्तदा के साथ मुमासिल को भी क्या होना चाहिए, जायज होना चाहिए। यानी अगर ज़ैद अपनी तमाम खुसूसियात के साथ बेऐन ही मुआद वाक़े हो सकता है, तो यही ज़ैद बेऐन ही मुमासिल के तौर पर, मुमासिल वही ऐन है, यानी मुआद की, यहां पर मुआद में आप जायज मानते हैं, हम कहते हैं कि यही फर्ज कब जायज है कि जब ज़ैद अभी मौजूद है, मादूम नहीं हुआ, तो यहां भी इसको जायज होना चाहिए। क्यों? इस वजह से कि कायदा मौजूद है, हुक्मुल अमसाल फीमा यजूज व फीमा ला यजूज वाहिद, यानी अमसाल का हुक्म एक ही रहेगा। अगर एक मिसल पर आपने हुक्म लगा दिया जायज है, तो दूसरे के ऊपर भी आप क्या करेंगे, जवाज का हुक्म देंगे। अगर अदम जवाज का हुक्म लगाया तो दूसरे पर भी क्या होगा, जवाज का। अब यहां पे फर्ज क्या है, मुआद ऐन मुब्तदा है, और जो मुमासिल हम उसके साथ फर्ज कर रहे हैं वो भी क्या है, ऐन मुब्तदा है। तो ऐन, जब मुआद के जवाज के कायल हो रहे हैं, तो मुमासिल के जवाज के भी आप क्या हो, कायल हो, जो कि मुब्तदा के साथ मौजूद है। बात वाज़ेह है? ये एक मुकदमा कि अगर आप मुआद के जायज, मुआद के इआदे के जायज हैं, मुआद के जवाज के कायल हैं, तो आप फिर मुब्तदा यानी ज़ैद पहले जो मौजूद है उसके साथ भी एक ज़ैद के कायल हो सकते हैं। जायज होना चाहिए कि जो तमाम खुसूसियात में ज़ैद जैसा हो। मुआद की तरफ आप अभी जाए नहीं, आप पहले यहीं पर ही आए कि अभी मादूम नहीं हुआ, यहीं पर ही ज़ैद बेऐन ही मौजूद हो सकता है, इसी ज़ैद जैसा कि जो अभी मौजूद है, बेऐन ही, ऐनियत के साथ। ये एक मुकदमा हो गया। बस जैसे मुआद जायज है, मुमासिल भी जायज होना चाहिए। अब फलसफा आकर बुरहाने अकली के जरिए यह मतलब साबित करता है कि मुमासिल जायज नहीं है, इज्तिमाउल मिसलैन जायज नहीं है, और मिसलैन भी फलसफी, न मिसलैन उर्फी व फिqही। मतलब कोई आकर कहे कि ये दो मार्कर जो है वो मिसलैन है, ये तो जमा हो गए हैं, ये मिसलैन उर्फी हैं। हमारी मिसलैन फलसफी की बात हो रही है, मिसलैन फलसफी वही ऐन एक दूसरे का होना, यदि एक जैसे होना, तमाम खुसूसियात में फर्क किसी किस्म का ना हो, ऐनियत उनके अंदर तहक्कुक पैदा कर जाए, उसको फलसफे की जबान में मिसलैन कहा जाता है। तो फलसफा आकर यह साबित करता है कि इज्तिमाउल मिसलैन मुहाल है, मिसलैन जमा नहीं हो सकते। बस जब इज्तिमाउल मिसलैन जायज नहीं है, मुहाल है, तो इसका मतलब है कि ये मुमासिल के जो ज़ैद के साथ जायज है, ये जायज नहीं है। बस जब मुमासिल जायज नहीं है, तो मुआद खुद बख्त क्या हो जाएगा, अदम जवाज चला जाएगा वहां पर। क्यों? क्योंकि हुक्मुल अमसाल फीमा यजूज व फीमा ला यजूज वाहिद, क्योंकि यहां पर मुमासिल अदम जवाज का हुक्म रखता है, तो मुआद भी ऐन मुमासिल है, तो इसके ऊपर भी हुक्म किसका आना चाहिए, अदम जवाज का आना चाहिए। बस मुआद भी जो है वो जायज नहीं होगा, बस इआदा मादूम जो है वो जायज नहीं होगा। देखें हुज्जतुन उखरा, लो जाज़त इआदतु शै बिऐनिही बअदा इनइदामे, अगर कायल हो जाएं कि मुमकिन है एक चीज बेऐन ही पलट आए, कब, बादा इनइदामे, उसके पर मुनअदिम होने के बाद, तो कहते हैं कि जाज़ा ईजादो मा युमासिलहु मिन जमीइल वजूह इब्तिदाअन वस्तिनाफन, तो जायज होना चाहिए उस चीज का ईजाद के जो क्या है, मुब्तदा के मुमासिल हो तमाम जिहात में, और ये ईजाद जायज हो कब, इब्तिदाअन, यानी अभी मादूम ना हुआ हो, ज़ैद अभी मादूम नहीं हुआ, लेकिन इसी के साथ क्या होना चाहिए, दूसरा ज़ैद के जो ऐन हो इस ज़ैद के तमाम जिहाद के अंदर, उस वक्त भी क्या होना चाहिए, जायज होना चाहिए। वह मुहालुन, और ये ईजाद मुमासिल मुहाल है। बस जब ईजाद मुमासिल मुहाल है, तो नतीजा क्या निकलेगा, मुआद भी क्या होगा, मुहाल हो जाएगा। इसको वजाहत करते हैं। अम्मल मुलाजिमा, मुलाजिमा क्या है कि अगर मुआद जायज है तो मुमासिल का ईजाद भी क्या होना चाहिए,
जायज होना चाहिए, इस मुलाजमे को बयान करते हैं। फल अन्ना हुक्मल अमसाल फीमा यजूज व फीमा ला यजूज वाहिदुन। फरमाते हैं हमारे पास कायदा फलसफी मौजूद है, बुरहानी कायदा है ये कि अमसाल का हुक्म एक ही होता है, चाहे वो जवाज में हो या अदम जवाज के अंदर में हो। व मिस्लु शैअ इब्तिदाअन व मुआदुहु सानियन ला फर्क बैनहुमा बिवजहिन। मिसल जो इब्तिदा में हो, यानी क्या मुराद, यानी जैद जब मादूम नहीं हुआ अभी, इसका जो मिसल होगा बेअैनिही, इसको कहते हैं मिस्लु शैअ इब्तिदाअन। ये और मुआद कि जो मादूम होने के बाद जैद ने बेअैनिही आना है, पस मिस्लु शैअ इब्तिदाअन, और मुआद जो है ला फर्क बैनहुमा बिवजहिन, इनके दरमियान किसी किस्म का फर्क नहीं है। मुमासिल के अंदर और मुआद के अंदर कोई फर्क नहीं है। लिअन्नहुमा युसावियान शैअ, क्योंकि अशै अल मुब्तदा मिन जमीइल वजूह। क्यों फर्क नहीं है? क्योंकि मुआद और मुब्तदा ये दोनों मुसावी हैं तमाम जिहाद के अंदर। मुब्तदा के ना लिअन्नहुमा से मुराद है मुआद और मिस्लु शै इब्तिदाअन, ये दोनों मुसावी हैं किसके? अशै अल मुब्तदा। अशै अल मुब्तदा कौन है? मसलन वो जैद के जो भी मादूम नहीं हुआ, असल जिसको हमने करार दिया हुआ है, इसके मुमासिल हैं। बाकी ये मुमासिल हैं तो इनका हुक्म भी क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। मुआद अगर जायज है बस मुमासिल को भी जायज होना चाहिए। अम्मा इस्तिहालतुल लाजिम, इस्तिहाला लाजिम क्या था कि चूंकि ईजाद मुमासिल नामुमकिन है, मुआद भी क्या है? नामुमकिन है। अब इसको बयान कर रहे हैं, कहते हैं लाजिम मुहाल क्यों है? फलिस्तिल्जाम इज्तिमाइल मिसलैन फिल वजूद अदम तमय्युज बैनहुमा। फरमाते हैं क्योंकि इज्तिमाउल मिसलैन वजूद के अंदर ये मुस्तलजिम होता है कि उन दो के दरमियान, यानी दो चीजों के दरमियान किसी किस्म का कोई तमय्युज ना हो। अगर तमय्युज ना हो तो आप एक को मुब्तदा बना रहे हैं, एक को क्या बना रहे हैं? मुआद बना रहे हैं, बस कसीर हैं। और एक तरफ से आप कह रहे हैं कि इज्तिमाउल मिसलैन, यहां पर मिसलैन मौजूद है। इज्तिमाउल मिसलैन का तकाजा यह है कि तमय्युज ना हो। अगर तमय्युज ना हो तो आप उसको मिसलैन कह सकते हैं? नहीं कह सकते, दो चीज नहीं कह सकते उसकी, एक चीज है वहां पर। लाजिम क्या आएगा? लाजिम यह आएगा कि कसीर जो है वो वाहिद हो जाएगा। कसीर क्या था? एक मुब्तदा है, एक मुमासिल है, ये कसीर है। और इज्तिमाउल मिसलैन इक्तिजा करता है किस चीज का? तमय्युज ना हो। अगर तमय्युज नहीं है, मैं चाह रहा हूं जल्दी जल्दी फसल खत्म हो जाएगी, यहां पर ना रहे। हौसला है तो ये 10 मिनट थोड़ा ठहर जी, मतलब आसान है, मुश्किल नहीं है, जल्दी जल्दी तस्बीह कर लेंगे बात को। तो कहते हैं कि जब अगर आप देखें एक तरफ मुमासिल है, एक तरफ मुब्तदा है, ये अगर देखें तो कसरत है इसके अंदर, लेकिन इज्तिमाउल मिसलैन का इक्तिजा क्या है कि तमय्युज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि कसीर वाहिद बन रहा है, और कसीर मिन हैसो हुआ कसीर वाहिद बन जाए ये नहीं हो सकता, असल मुहाल है। देखें, लिस्तिल्जाम इज्तिमाइल मिसलैन फिल वजूद अदम तमय्युज बैनहुमा, कहते हैं मिसलैन का वजूद के अंदर मिसलैन का जमा हो जाना ये मुस्तलजिम है इस बात का कि असलन दो चीजों के दरमियान असलन तमय्युज होना ही नहीं चाहिए। और ये अदम तमय्युज का ना होना, इससे मुराद क्या है? वह हुआ वहदतुल कसीर मिन हैसु हुवा कसीरुन। चूंकि अदम तमय्युज का नतीजा ये निकलेगा कि कसीर होते हुए वाहिद है, वह मुहाल, और ये मुहाल हो जाएगा। और जब इज्तिमाउल मिसलैन मुहाल है तो मुआद खुद ब खुद क्या हो जाएगा? मुहाल हो जाएगा। बस मादूम का इआदा बेऐन ही मुहाल हो जाएगा। चूंकि मुमासिल का ईजाद जायज नहीं है, बस मुआद का इआदा भी जायज नहीं हो जाएगा।
आगे हुज्जतुन उखरा, तीसरी दलील क्या है? फरमाते देखें, आसान है मतलब, कहते हैं अगर इआदा मादूम बेऐन ही जायज हो जाए तो या तो खुल्फ लाजिम आएगा या इनकलाब लाजिम आएगा। कैसे? अगर आप कहें कि जैद के जो अभी मादूम नहीं हुआ, इसको क्या नाम दिया कि ये मुब्तदा है, और जब ये मादूम होकर पलट कर आएगा इसको क्या नाम देंगे? मुआद कहेंगे इसको। तो अब मुआद बेऐन ही क्या है? मुब्तदा है, दुरुस्त है। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मुब्तदा जिसको मैंने फर्ज किया हुआ था वो क्या निकल गया बीच में? मुआद बन गया, खुल्फ फर्ज लाजिम आ गया। इनकलाब भी ऐसे ही है, यानी मुब्तदा की यानी जात में वो क्या था? मुब्तदा था। अब ये मादूम होने के बाद जब इआदा हुआ इसका तो उसकी जात बदल गई। क्या? पहले जात इसकी मुब्तदा थी, अब क्या हो गई? मुआद हो गई, और ये इनकलाब जात है। और इनकलाब जात और खुल्फ दोनों क्या हैं? मुहाल हैं, बस इआदा मादूम मुमकिन नहीं है। इन्ना इआदतल मादूम तूजिबु कौनल मुआद हुवल मुब्तदा। कहते हैं कि इआदा मादूम का मतलब ये होगा कि मुआद वही मुब्तदा बन जाए, वह मुहाल, ये मुहाल है। क्यों? लिस्तिल्जाम ही अल इनकलाब, या तो इनकलाब लाजिम आएगा, अविल खुल्फ या खुल्फ फर्ज लाजिम आएगा। मतलब आसान है, मेरे ख्याल में तबयीन की जरूरत नहीं है इसको। बयानुल मुलाजिमा अन्ना इआदतल मादूम बेऐनिही तस्तलजिम कौनल मुआद हुवल मुब्तदा जातन। कहते हैं मादूम बेऐनिही का इआदा मुस्तलजिम है कि मुब्तदा मुआद वही मुब्तदा है जात के एतबार से, और वफी जमीइल खुसूसियातिल मुशख्खिसत हत्ता ज़मान, वो मुआद ऐन मुब्तदा है तमाम खुसूसियात के अंदर, हत्ता ज़मान के अंदर भी एक जैसे हैं। फयऊदुल मुआद ऐनुल मुब्तदा, बस क्या हो जाएगा? मुआद ऐनुल मुब्तदा बन जाएगा। वहुवल इनकलाब, ये इनकलाब है, यानी जात पहले उसकी मुब्तदा थी, अभी आप उसको क्या कह रहे हैं? ये मुआद है, उसकी जात बदल गई तो इनकलाब लाजिम आ जाएगा। अविल खुल्फ, या जिसको आपने मुब्तदा फर्ज किया हुआ तो वो क्या बन गया? मुआद बन गया, बस खुल्फ फर्ज लाजिम आ जाएगा। बस ये दुरुस्त नहीं है। हुज्जतुन उखरा, चौथी दलील, लौ जाज़तिल इआदा लम यकुन अददुल औद बालिगन हद्दन मुअय्यनन यक़िफ अलैहि। कहते हैं कि अगर इआदा मादूम जायज करार दे दें तो फिर ये इआदा कभी रुकेगा नहीं। क्यों? इस वजह से कि इआदा मादूम में मादूम बेऐन ही पलट रहा होता है। तो आप अगर अलिफ के इआदे को जायज करार दे रहे हैं, यानी औदे अव्वल को पहले पलटने को जायज करार दे रहे हैं, तो दूसरे पलटने को भी जायज होना चाहिए, क्योंकि बेऐन ही है, ऐन एक दिगर हैं। तो अगर पहला पलटना जायज है तो दूसरा पलटना खुद ब खुद जायज होगा, क्योंकि वो भी ऐन है इसका। तो पहला और दूसरे में कोई फर्क नहीं है, दूसरा भी जायज होना चाहिए। दूसरा पलटना अगर जायज हो, तीसरा भी क्या होना चाहिए? जायज, क्योंकि तीसरा भी ऐन अव्वल है। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाएगा। तो जब आप अदद मुअय्यन ही नहीं कर पा रहे कि ये पहला पलटना कौन सा है, दूसरा पलटना कौन सा है, तीसरा पलटना कौन सा है, तो फरमाते हैं कि ये आपको असलन जब ये सूरत हाल बन जाएगी कि ला यक़िफ हो जाएगा सारा इआदा, तो आप मबदा और मुब्तदा के दरमियान फर्क ही पैदा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐन है एक दूसरे के। जब ऐन है तो आप कैसे कहेंगे कि ये मुब्तदा है और ये मुआद है? आप जब उसमें तशखीस नहीं दे सकते कि मुब्तदा कौन है, मुआद कौन सा है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये मुआद है, पलट कर आया है? नहीं कि आप इसमें तशखीस दे सकते। पर वाज़े देखें, इबारत में मतलब वाज़े हो जाएगा। लौ जाज़तिल इआदा, अगर जायज हो इआदा, लम यकुन अददुल औद बालिगन हद्दन मुअय्यना यक़िफ अलैहि, तो औद की जो अदद है वो किसी खास अदद पर जाकर नहीं रुकेगा, तसलसल लाजिम आएगा। इज़ ला फर्क बैनल औदतिल ऊला वस्सानिया, क्योंकि पहले और दूसरे औदे में कोई फर्क नहीं है कि आप कहीं पहला पलटना जायज दूसरा पलटना जायज नहीं है। बाबा क्यों? पहला अगर जायज है दूसरा भी जायज है, क्योंकि दूसरा पहले की तरह ही है। वहां कजा इलामा ला निहायत लहू, हर एक के बारे में यही कहेंगे। तीसरा अगर जायज नहीं है तो क्यों जायज नहीं है, हालांकि वो तीसरा दूसरे की तरह है, तो लिहाजा उसको भी जायज होना चाहिए।
बस जब ये हो गया, कमा लम यकुन फर्कुन बैनल मुआद वल मुब्तदा। अब कहते हैं जिस तरह के आपने देखा कि मुआद और मुब्तदा के दरमियान फर्क नहीं कर सकते, फर्क नहीं कर सकते। वतअय्युनुल अदद मिन लवाज़िम वजूद शैइल मुतशख्खिस। आप 1 2 3 कब कह सकते हैं कि जब एक चीज मुतशख्खिस हो, मुशख्खस हो के आपके सामने मौजूद हो, तब आप कहेंगे कि ये एक है, और दूसरी मुशख्खस हो के आपके सामने मौजूद, तब आप कहेंगे कि ये क्या है, 2 है। तो 1 2 3 कहना कब सादिक आता है कि जब शय मुतशख्खिस तौर पर मौजूद हो, और यहां तो मबदा और मुआद मुतशख्खिस ही नहीं हो रहे हैं। क्यों? एक दूसरे का ऐन है। मुशख्खस तो तब हो जब इनके दरमियान कोई ना कोई फर्क नजर आए, और हमारा फर्ज यह है कि मुआद और मुब्तदा के दरमियान कोई फर्क नहीं है। जब इनके दरमियान कोई फर्क नहीं है तो मुआद और मुब्तदा में आप फर्क नहीं बयान कर सकते कि ये मुआद है, ये मुब्तदा है। तो जब आप मुआद और मुब्तदा के दरमियान फर्क बयान नहीं कर सकते तो कैसे फर्क बयान करेंगे कि ये पहला मुआद है, ये दूसरा मुआद है, ये तीसरा मुआद है। जब आप मुब्तदा और मुआद के दरमियान फर्क नहीं कर पा रहे तो खुद मुआद के दरमियान फर्क कैसे कर पाएंगे? बस जब आप फर्क ही नहीं कर पाएंगे, पहला दूसरा जब नहीं कह सकते, तो इसका मतलब है कि मुआद है ही नहीं है। मतलब तो यह नहीं हुई है। यानी मुआद कब कहेंगे? जब वो मुतशख्खिस हो, और हमारा फर्ज यह है कि मुआद ऐन मुब्तदा है। तो कैसे कहेंगे कि यह मुब्तदा है या मुआद है? कह सकते हैं जब बिल्कुल ऐन हो एक दूसरे में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मुब्तदा है, ये मुआद है? ये तब कहेंगे कि जब मुब्तदा और मुआद एक दूसरे से जुदा हो, और हमारा फर्ज ये कि जुदा नहीं है। तो जब आप मुब्तदा और मुआद के दरमियान फर्क नहीं कर पा रहे तो कैसे कह सकते हैं कि यहां पर इआदा मादूम हुआ है? और मुआद के अंदर भी फर्क नहीं कर पाएंगे कि ये पहला मुआद है, दूसरा मुआद है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, कौन सा है, ये भी फर्क नहीं कर पाएंगे। बस इआदा मादूम असल मुमकिन नहीं है, फर्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जिसको भी फर्ज करेंगे वो मुब्तदा है, क्योंकि अहमियत पाई जाती है उनके दरमियान। ये था 4 दलीलें उन फलासफा की जो कायल थे कि इआदा मादूम बेऐन ही मुमतने है। इसके बाद जो आकर एक दलील फकत उनकी जिक्र करते हैं कि जो कायल हैं कि इआदा मादूम जो है वो जायज़ है। मतलब आसान है। फरमाते इह्तज्जल मुजव्विज़ून, जो जायज़ होने के कायल हैं उनकी दलील ये है कि लो इम्तनअत इआदतुल मादूमे, अगर मादूम का इआदा मुमतने हो जाए लकान ज़ालिका, तो उसकी 3 सूरतें बनती हैं जिसकी वजह से वो मुमतने बना है। इम्मा लिमाहियत है, या तो माहियत की वजह से मुमतने है, जैसे शरीक बारी की माहियत जो है वो मुमतने है। शरीक बारी असलन माहियत और जात के एतबार से मुमतने है कि वो खारिज में आए। तो आया इआदा मादूम अगर मुमतने है तो अपनी माहियत की वजह से मुमतने है। व इम्मा लाज़िम माहियत ही, या ना माहियत के एतबार से मुमतने नहीं है बल्कि लाज़िमा माहियत की वजह से मुमतने है। दुरुस्त है। लाज़िम माहियत किसे कहते हैं? मसलन जैसे ज़ौजियत अरबा के लिए, अरबा एक जात है, 4 का अदद एक जात है, इसका लाज़िमा क्या है? ज़ौजियत है। ज़ौजियत लाज़िम माहियत शुमार होता है। यानी ये अरबा जहां भी होगा ज़ौजियत वहां होगी। अगर आप ज़हन में तसव्वुर करेंगे तो ज़हन में ज़ौजियत मौजूद होगी। अगर अरबा खारिज में होगा तो ज़ौजियत भी कहां हो गई? खारिज में होगी। ये लाज़िम माहियत की खुसूसियत है कि लाज़िम माहियत जहां होगी लाज़िम भी वहीं होगा। और लाज़िम माहियत कभी भी माहियत से जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि लाज़िम माहियत है, ये कभी भी उससे जुदा नहीं हो सकता। तो कहते हैं या तो ये इम्तना माहियत की वजह से है या इम्तना लाज़िम माहियत की वजह से है। तो कहते हैं कि अगर इन 2 की वजह से हो, फलौ कान कज़ालिक, अगर माहियत की वजह से मुमतने हो या लाज़िम माहियत की वजह से मुमतने हो, लम यूजद इब्तिदाअन, तो असलन इसको खल्क ही नहीं होना चाहिए था। अगर ज़ैद का इआदा मुमतने है ज़ैद की माहियत की वजह से या लाज़िम माहियत की वजह से,
तो फिर ज़ैद खल्क कैसे हो गया? क्योंकि इसकी माहियत तो है मुमतने। तो जब माहियत इसकी मुमतने है तो शरीक बारी की तला इसको खल्क ही नहीं होना चाहिए था, हालांकि ज़ैद खल्क हो गया। बस मालूम हुआ कि ज़ैद अपनी माहियत या लाजिम माहियत के जरिए मुमतने नहीं है, इसका इआदा माहियत और लाजिम माहियत की वजह से मुमतने नहीं है। वह ज़ाहिर, ये तो मतलब आप भी मानते हैं। ये दो सूरतें जब बातिल होगी, पीछे एक सूरत बचती है, वह इम्मा लिआरिज़ मुफारिक, या क्या है, किसी आरजी अम्र की वजह से मुमतने हुआ है, यानी ज़ैद के ऊपर एक ऐसी हालत तारी है कि जिसकी वजह से उसका इआदा मुमतने हो रहा है। अर्ज़ मुफारिक जिसे कहते हैं, जैसे मसलन इंसान के रंग बदलता है, गुस्से में कुछ और है, खुशी में कुछ और है, इसको कहते हैं ये अर्ज़ मुफारिक है। यानी जब गुस्सा है तो रंग सुर्ख है, लेकिन अगर गुस्सा खत्म हो गया तो सुर्खी भी खत्म हो जाती है, इसको अर्ज़ मुफारिक कहते हैं। फरमाते हैं अगर अर्ज़ मुफारिक की वजह से इम्तिना आ रहा है कि ज़ैद आदा नहीं कर पा रहा, तो कहते हैं दुरुस्त है कि अभी वो वाली हालत उस पर बाकी है और वो मादूम आदा नहीं कर पा रहा। जैसे ही वो अर्ज़ मुफारिक खत्म होगा तो आदा मादूम क्या हो जाएगा? जायज हो जाएगा। जैसा कि इंसान का गुस्सा खत्म हुआ तो सुर्खी खत्म हो गई, तो इस ज़ैद के ऊपर अगरचे एक ऐसी हालत है कि वो आदा नहीं कर पा रहा, तो हालत जैसे ही खत्म होगी तो ज़ैद का आदा जायज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जायज हो जाएगा। तो कहते हैं अर्ज़ मुफारिक की वजह से मुमतने होना ये उसको हमेशा के लिए मुमतने नहीं बनाता। नजरिया वही रहेगा कि आदा मादूम जायज है, यहां इस्तिस्नाअन जो है वो जायज नहीं, क्योंकि एक ऐसी हालत ज़ैद के ऊपर है जिसकी वजह से वो आदा नहीं कर पा रहा। बस आदा मादूम जायज है, हमने अकली दलील आपके लिए कायम कर दी है, क्योंकि माहियत की वजह से अगर महाल होता तो खारिज में खल्क ना होता असलन। बस अर्ज़ मुफारिक की वजह से, और अर्ज़ मुफारिक मुश्किल खड़ी नहीं करता, जैसे ही वो खत्म होगा ये आदा कर जाएगा और कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। वरुद्दा, जवाब क्या है इसका? आसान है जवाब उसका, बंदगान खुदा आपको नहीं पता किसने कहा है कि मादूम का आदा माहियत की वजह से या उसके लाजमे की वजह से या अर्ज़ मुफारिक माहियत की वजह से मुमतने है, बल्कि उसके वजूद की वजह से मुमतने है। यानी ये इम्तना वजूद के साथ ताल्लुक रखता है और ये अम्र लाजिम है, वजूद अम्र लाजिम है। तो जब इम्तना वजूद के अंदर पाया जाता है तो ये वजूद तो कभी भी उससे बरतरफ नहीं होगा, तो कभी भी वो मादूम पलट कर नहीं आएगा। वरुद्दा बेअन्नल इम्तना लिअम्रिन लाजिमिन, इम्तना अम्र लाजिम के जरिए, अर्ज़ मुफारिक के जरिए नहीं है, बल्कि अम्र लाजिम के जरिए है। लेकिन लिवजूद ही, वो अम्र लाजिम जो लाजिम है और उसकी वजह से इम्तना आ रहा है, वो किसके लिए? वजूद के लाजिम में से है। वह होवियत, उसकी होवियत की वजह से है, लाल माहियत ही, ना उसकी माहियत की वजह से। वाला माहियत तो पलट के आ सकती है, मसलन जैसे जनाब उज़ैर, ठीक है, ये जब जिंदा थे मर गए फिर दोबारा पलट के आए। अब पहले वो इंसान थे, मरने के बाद दोबारा वही इंसान है जो क्या है? मरने से पहले हैं। इंसानियत में कोई मुश्किल पेश नहीं आती है। मुश्किल कहां पेश आती है? मुश्किल वहां पेश आती है जब वजूद का मरहला आ जाए। वजूद में आकर अगर आप कहें कि वजूद एक मर्तबा खत्म हो जाए और फिर बेऐन ही वजूद को क्या करें? पलटा दें, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमतने है। कमा हुआ ज़ाहिरुन मिनल हुज्जतिल मुतक़द्दिमा, ये चार दलीलें जो हमने पहले बयान की है, इसका जाहिर भी यही है कि हमारी बात वजूद में चल रही है, ना कि माहियत में। व उम्दतु मा दआहुम इलल क़ौल बिजवाज़िल इआदति, कहते हैं कि ये कायल क्यों हो गए कि इआदा मादूम जायज है? कहते हैं ज़अमुहुम अन्नल मआदा, ये मुआद नहीं है, मआद है, अन्नल मआदा, उनका गुमान ये था मुतकल्लिमीन का कि मआद वह हुआ मिम्मा नतक़त बिहि शराइउल हक्का, के जिसकी खबर शरीयत हक्का ने दी है। ये मआद क्या है? मिन कबील इआदतिल मादूम, के इंसान मादूम हो जाएगा मरने के साथ, फिर उसके क़यामत के दिन पलटाया जाएगा। अब मआद को चूंकि इआदा मादूम मानते थे, बस कोशिश कर रहे थे इआदा मादूम को जायज करार दे दें। व यरुद्दुहु, लेकिन ये नजरिया बातिल है। क्यों? अन्नल मौता नौ इस्तिकमालिन, मौत मादूम होने का नाम नहीं है, बल्कि इस्तिकमाल का नाम है।
انسان کامل ہوتا ہے موت کے ذریعے، ایک عالم مادی، عالم سفلی، عالم پست سے منتقل ہوتا ہے عالم بالاتر کے اندر، عالم مثال کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ لا انعدام و زوال، موت انعدام و زوال کا نام نہیں ہے۔ پس چونکہ ان کا مبنا باطل تھا، پس ان کا یہ والا نظریہ بھی کیا ہے، خود بخود اگر ان کو سمجھا دیا کہ معاد جو ہے وہ اعادہ معدوم نہیں ہے، تو یہ کبھی بھی زور نہیں لگائیں گے اعادہ معدوم کے جواز کے اوپر۔ یہ زور اس لیے لگا رہے تھے تاکہ معاد کو درست کریں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ معاد جو ہے وہ اعادہ معدوم نہیں ہے، بلکہ انسان منتقل ہوتا ہے برزخ کے اندر، پھر قیامت کے دن انتقال ہے محشر کے اندر، نہ یہ کہ اس کو معدوم چیز کو ایک پلٹایا جائے گا آ کر۔ لہذا یہ مشکل اس وجہ سے ان کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ اور یہ ہماری فصل جو ہے وہ تمام ہو گئی۔ اگر کوئی نقطہ جلدی میں کوئی رہ گیا ہے تو آپ پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ اس کو حل کر دیں گے۔ انشاءاللہ کل سے نیا مرحلہ میں وارد ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔